Okay. So, hello everyone. Good evening and welcome to our Finance Current Affairs session, wherein we discuss finance current affairs news for all of you. Okay. Could you please confirm that everything is fine with my audio and video so that we can start with the session? Good evening, everyone. Good evening, Manish. Could you please confirm that everything is fine with my audio and video? I hope you had a great weekend, right? Yes. Thank you. Thank you for the confirmation. Now we are starting with the session. In this session, we are going to discuss three newses. The first, we have a WMA limit for Government of India, which is being decided by RBI. We will decide and we will discuss that what do we mean by WMA, what is the scheme and how much is the limit for this time. And then we have two regulations which are again related to RBI. These are really very important. We will discuss in detail that what exactly these are. These are quite technical, so we will try to make it as simple as we can. So first we are going to talk about the limit. Before we get into the limit, we need to understand what is WMA. WMA stands for Ways and Means Advances. Advances means loans. Okay. So who is providing loan here? The RBI is providing loan to whom? To government. And now why government needs a loan? A government needs a loan so that they can manage their mismatch between the receipt and their expenditure. This could happen that their expenditures are more than whatever amount they have got in receipt, right? So in order to match these receipt and expenditure, they might need short-term loan. They might need short-term loan, right? From RBI. Now, why RBI is providing a loan? Because it is a function of the RBI. As we know that RBI is a banker to bank. RBI is a banker to government as well. So RBI provides what? Loan to government, right? So RBI provides short-term loans to government and this scheme is named as Ways and Means Advances. This scheme was introduced in 1997 and what is the aim? Aim is to overcome the temporary cash flow mismatches of the government, right? जब गवर्नमेंट के रिसीट्स यानी कि आने वाले पैसे कम होते हैं एज कंपेयर टू देयर खर्चे एज कंपेयर टू देयर एक्सपेंडिचर देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द वी कैन से लिक्विडिटी और वी कैन से बिटवीन द कैश फ्लो ठीक है एंड हेंस आरबीआई ने ये फंक्शन प्रोवाइड करवाता है या फिर ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है The WMA is a short-term loan from the RBI to central or the state government. The money must be returned in 90 days. अब इस स्कीम के रहते that means within the scheme whatever money that is being allotted by the RBI to the government as a short-term loan under this WMA limit, it must be returned within 90 days. That is within 3 months they have to return this money. They have to return this money to the RBI, right? Because this is a loan, that means RBI is going to charge some interest rate on the loan that is being provided by them to the government. So how much loan does they charge? They charge as per the existing repo rate. So whatever would be the existing repo rate, as per that they are going to charge the interest from the government on the loan. Okay. If WMA exceeds the 90 days limit, अगर 90 days के बाद गवर्नमेंट रिटर्न नहीं करती है अपना पैसा टू whom? टू द आरबीआई, लोन वापस नहीं करती है तो क्या होगा? देन इट विल कंसीडर्ड एज अ ओवरड्राफ्ट. ठीक है, आपको 90 डेज का टाइम दिया था दैट यस यू कैन यूज दिस शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, 90 डेज एक्सीड हो गए हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स नाउ द लोन विल बी सेड एज ओवरड्राफ्ट लोन बिकॉज दे हैवंट पेड यू द अमाउंट. एंड क्योंकि ओवरड्राफ्ट है आप पे पेनल्टी लगेगी, यू हैवंट पेड अस द अमाउंट तो यू विल बी पेनलाइज्ड, राइट? तो किस तरह से ये पेनल्टी लगाते हैं? हाउ डू दे पेनलाइज द वी कैन से द गवर्नमेंट? दे सेड कि आपको पहले कितना देना पड़ रहा था? सिर्फ रेपो रेट. नाउ यू विल पे मी रेपो रेट प्लस 2%. नाउ यू विल पे मी रेपो रेट प्लस 2%. अब आपको मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ेगा बिकॉज यू हैवंट पेड मी इन द रिक्वायर्ड टाइमलाइन. नाउ यू हैव एक्सीड द रिक्वायर्ड टाइमलाइन ऑफ 90 days and now you will pay me repo rate plus 2% over the short term loans. So this is what the ways and means advances are. ठीक है, आगे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ WMA कौन से हैं. अब टाइप ऑफ WMA भी होते हैं. वन इज द स्पेशल which we also call it as special drawing facility. It is also called
SDF, special drawing facility. It is a facility which is being provided by the RBI to the government, wherein the government gives what? Government gives its government security as a collateral, to whom? To RBI. And in return of this collateral, what RBI gives to government? They give लोन टू द गवर्नमेंट. ठीक है, क्या देते हैं? लोन देते हैं टू द गवर्नमेंट. राइट, सो दिस इज अ स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी अगेंस्ट द कोलैटरल. किस तरह का कोलैटरल हो सकता है? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटीड रिडम्पशन फंड और ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स. या तो फिर वो अपने ट्रेजरी बिल्स दे सकते हैं, अगेन विच आर बीइंग बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, और दे कैन ऑल्सो गिव गारंटी रिडम्पशन फंड और सिंकिंग फंड. यानी कि ये कैसे पैसे हैं जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिए हैं? स्टेट को दिए हैं. एंड स्टेट गारंटीज द गवर्नमेंट कि दे विल रिटर्न द मनी. तो वो जो गारंटी होती है, दे कैन पुट दैट गारंटी विद द आरबीआई एज अ कोलैटरल कि यस यू विल गेट द मनी. So against these guarantees named as guarantee redemption fund and consolidated sinking fund, they can put these guarantees against RBI as a collateral for the loan, right? इन सब के अगेंस्ट क्या ले सकती है गवर्नमेंट? लोन ले सकती है फ्रॉम द RBI. ठीक है, जब गवर्नमेंट ये वाला जो लोन होता है इसे एग्जॉस्ट कर देती है कंप्लीटली, दैट मीन दे हैव यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सर्विस of loan, then they can go to what? Then they can go to normal WMA. Then they can move to normal WMA. ठीक है, जो SDF होता है यानी कि स्पेशल लिमिट होती है, स्पेशल WMA होता है, इसमें they are paying less amount, they are paying less interest rate, that is रेपो रेट जितना भी चल रहा है less 1%, so they are paying lower interest rate on the SDF, on the special WMA. Why? Because they are keeping what? Collateral. So it is quite safer for the RBI. So they are keeping less interest rate in this case. ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है? दैट सिंपली यू आर एक्सेसिंग द WMA लिमिट, जो आपको हम कह सकते हैं 3 मंथ्स के पीरियड में वापस करनी है, एंड 90 डेज. एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज बीइंग चार्ज? दैट इज रेपो रेट. अब इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं. That is WMA loan is based on the 3-year average of the state actual revenue and capital expenditure. वो क्या कह रहे हैं कि हम जो ये लिमिट डिसाइड करते हैं WMA का लोन हम कितना दे सकते हैं एक गवर्नमेंट को बाय द RBI, तो वो डिसाइड कैसे करते हैं? वो कहते हैं हम गवर्नमेंट के लास्ट 3 years के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, एंड देन वी टेक एन एवरेज ऑफ इट, एंड देन वी डिसाइड दैट हाउ मच ऑन एन एवरेज देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर. बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड द लिमिट. ठीक है, दिस इज व्हाट इज इट इज रिटन. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? दैट देयर इज अ स्पेशल WMA जिसमें क्या देते हैं? कोलैटरल देते हैं. अगर ये एग्जॉस्ट हो गया तो देन दे कैन गो टू नॉर्मल WMA. ठीक है, अगर ये भी एग्जॉस्ट हो गया तो मतलब अब क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट हो गया. ओवरड्राफ्ट जिसमें 90 डेज से ज्यादा हो गया, दे हैवंट पेड द अमाउंट. इसमें कितना होता है? रेपो रेट माइनस 1%. इसमें कितना होता है? ओनली रेपो रेट. इंटरेस्ट रेट लगता है, इस पे कितना लगता है? रेपो रेट प्लस 2%. ये चीज आपको याद रखनी है विद रिगार्ड्स टू WMA. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बार की लिमिट की, दैट इज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27. कब तक का हुआ ये पीरियड? दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2026 टू सितंबर 2026. तो इस पीरियड तक गवर्नमेंट RBI से कितना लोन ले सकती है? तो दे हैव डिसाइडेड द लिमिट ऑफ 2 लाख 50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ भी कह सकते हैं हम इसे. दिस इज द लिमिट, और ये लिमिट आपकी पूछी जा सकती है इन फेज 1 एंड फेज 2, दोनों ही फेजेस के लिए. ऑब्जेक्टिव टाइम में ये लिमिट आपसे पूछी जा सकती है. इट कैन बी अ पीरियड, इट कैन बी अ एग्जैक्ट लिमिट, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से WMA में कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, या फिर विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट इज दिस चार्ज अंडर विच सिनेरियो. तो ये भी आपको याद रखना है. एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज RBI ऑफ इंडिया में ट्रिगर फ्रेश फ्लोटेशन ऑफ मार्केट लोन्स व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइजेस 75% ऑफ द WMA लिमिट. ये लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं. दे आर सेइंग दैट मान लीजिए
क्या किया गवर्नमेंट ने ये जो नॉर्मल WMA था, इसका 75% ऑफ द लिमिट दे हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। ओके, मान लीजिए 1 लाख का लोन था, एग्जांपल ले रही हूँ, 1 लाख का लोन था, दे हैव ऑलरेडी एग्जॉस्ट और ऑलरेडी यूटिलाइज 75,000 रुपीज आउट ऑफ इट। तो यानी कि 75% उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो इस पॉइंट पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई गिव्स द फ्रेश फ्लोटेशन ऑफ मार्केट लोन्स, यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको और पैसों की जरूरत है, आई विल हेल्प यू इन रेजिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट। सो ये यहाँ पर चीजें, और ये इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, WMA और ओवरड्राफ्ट के बारे में। राइट, लेट्स जस्ट मूव अहेड। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट WMA लिमिट इज बीइंग डिसाइडेड अमंग द टू पार्टीज, दैट इज आरबीआई एंड गवर्नमेंट। दोनों कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को, दैट व्हाट शुड बी द लिमिट। वो डिसाइड करते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ दैट व्हाट शुड बी द लिमिट। तो इस तरह से इस बारी की लिमिट कितनी है, 2.5 लाख करोड़ है। पिछली बारी कितनी थी, 1.5 लाख करोड़ थी। आपको इस बारी की याद रखनी है, दैट इज 2.5। लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट न्यूज। अगेन ये आरबीआई का एक सर्कुलर है, वेर इन दे सेड NOP INR पोजीशन फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स। who are authorized dealers? These are banks who are dealing with foreign currency. Who are dealing with what? Foreign currency. ठीक है, तो ये ऑथराइज डीलर को कहा है कि आपकी जो NOP INR पोजीशन होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100 मिलियन। इट शुड बी लेस देन 100 मिलियन। तो हम देखते हैं कि क्या लिमिट है, NOP INR का क्या मतलब है। लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो NOP का फुल फॉर्म क्या है, नेट ऑप्शन पोजीशन इन रुपी। क्या कह रहे हैं, नेट ऑप्शन पोजीशन रुपी। NOP स्टैंड फॉर टोटल बाइंग माइनस टोटल सेल इन USD टर्म्स। अब देखिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। अभी हमारी कैसी पोजीशन चल रही है, इंडियन रुपी की। इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर्स इज वेरी वीक। ठीक है, वीक है मतलब कि इट हैज बीन डिप्रिशिएटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वी हैव टू पुट सो मच रुपीज इन ऑर्डर टू बाय $1। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डॉलर, $1 हम पहले 82 रुपीज में खरीद पाते थे, बट नाउ द सेम $1 इज ऑफ 93 रुपीज। तो हम कहेंगे द पावर ऑफ आर रुपी हैव वीकेंड, क्योंकि अब वी नाउ हैव टू पुट एक्स्ट्रा रुपी इन ऑर्डर टू बाय सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को लेने के लिए, खरीदने के लिए अब मुझे ज्यादा पैसे डालने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ माई इंडियन रुपी हैज वीकेंड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट डॉलर्स। So this is the situation, and why this is happening? Because our Indian banks, what they are doing, they are buying a lot of dollars. What they are doing, they are buying too much dollars and they are selling what, rupees. तो इससे क्या हो रहा है, as the demand increases, the prices of that product also increases. The same is happening in the foreign exchange. As the prices increases, as the demand increases of the dollars, because people are demanding what, people want what, dollars. ठीक है, war like situation चल रही है वैसे ही, everybody wants डॉलर्स, बिकॉज वो सेफ करेंसी है एज कंपेयर टू एनी अदर करेंसी। दूसरा रीजन ये है दैट पीपल आर इंपोर्टिंग ऑयल्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ, in order to pay off those importing bills. What they need dollars, because ultimately import bills किस में पे किया जाता है, डॉलर्स में पे किया जाता है, and because of that there is a lot of demand in the market for the dollars. तो डिमांड जब डॉलर्स की इतनी ज्यादा है एंड ऊपर से हमारे इंडियन बैंक्स भी क्या करेंगे, देयर वुड बी टू मच डिमांड ऑफ डॉलर्स बाय आवर बैंक्स, तो हमारा रुपी तो और भी ज्यादा वीकन हो जाएगा, राइट। इट विल बी गेटिंग डेप्रिशिएटिंग डे बाय डे, एंड वी नीड टू स्टॉप our banks from having too much exposure to rupee and dollar contracts, ठीक है, जिससे हमारा रुपी क्या ना हो, डेप्रिशिएट ना हो, राइट। तो यहां पर इसी चीज के लिए दे हैव पुट अ लिमिट कि आपकी बाइंग और सेलिंग, बाइंग का मतलब है लॉन्ग पोजीशन, सेलिंग का मतलब है शॉर्ट पोजीशन। इन टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, when we having a buying deal we call it as long position, when we are selling the dollars we will call it as शॉर्ट पोजीशन। तो कह रहे हैं आपका जितना भी एक्सपोजर है, यानी कि बाय और सेल को नेट पोजीशन आपका जितना भी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मिलियंस। इट शुड नॉट बी मोर देन 100 मिलियंस। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बारी हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में भी समझ के देख लेते हैं। तो एनओपी इन रुपी, एनओपी यानी कि नेट ओपन पोजीशन इन रुपीज आपका कितना है, रेफर्स टू नेट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ बैंक्स, एडीज, primarily by the commercial banks and the domestic market.
In simple terms, it captures the difference between a bank's long and short position in the foreign currency. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन सी foreign currency? डॉलर्स की बात हो रही है. Predominating in dollars against rupee. So NOP INR calculates by aggregating positions across various segments इंक्लूडिंग स्पॉट फॉरवर्ड स्वैप्स इन ओवर द काउंटर मार्केट. अब वो कह रहे हैं कि बैंक्स किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं, यूएसडी किस तरह बाय कर रहे हैं या फिर रुपीस किस तरह सेल कर रहे हैं. दे आर सेइंग दे आर बाइंग इट थ्रू वेरियस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो स्पॉट मार्केट में हो, चाहे वो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इनके थ्रू दे आर बाइंग द यूएसडी डॉलर्स, राइट. अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, why they are handling why they are buying too much dollar, इसके दो मेन रीजन हैं. फर्स्ट इज दैट there is a arbitrage. कैसा arbitrage है? that they are buying dollars at cheaper price in India. इंडिया में क्या कर रहे हैं? चीपर प्राइस में खरीद रहे हैं एंड देन दे आर selling the dollars in what? In higher price, say expensive price in India, right? How they are buying dollars in India? तो वो कहाँ से ले रहे हैं डॉलर्स? उन्हें डॉलर्स कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि एक्सपोर्टर्स को मिले पैसे, जैसे कि उन्हें कुछ रेमिटेंसेस आए, जैसे कि उन्हें कोई कंपनी थी, उन्हें पेमेंट मिली इन डॉलर्स. सो दे आर गेटिंग डॉलर्स एट अ चीपर रेट फ्रॉम देयर इनशोर, फ्रॉम ऑन शोर मार्केट. दैट इज इंडिया से उनको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं, डॉलर्स मिल रहे हैं विच आर एट अ चीपर रेट. ठीक है, जैसे कि कंपनीज ने अर्न करी, अब वो कन्वर्ट तो करवाएंगे, राइट. सो वेयर फ्रॉम देयर दे आर गेटिंग चीपर डॉलर्स. एंड क्योंकि अभी मार्केट में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में एट अ ग्लोबल रेट दे आर बीइंग सेलिंग एट अ हायर प्राइस, क्योंकि dollars are appreciating day by day because of the war like situation, right? And they are selling it in an expensive. Due to this, there is a arbitrage. There is a arbitrage in two different market, in onshore market and offshore market. Onshore market यानी कि इंडिया में सस्ते में खरीदते हैं, and then offshore में that they are selling it at expensive price. And this is giving them a space जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. ठीक है, बाय भी कर रहे हैं डॉलर्स और सेल भी कर रहे हैं, राइट. तो हमारे जो इंडिया है, वेयर द डॉलर्स और वी कैन से विद इन इंडिया एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. तो इट इंक्लूड्स व्हाट? कहां से बाय कर रहे हैं? बाय दे आर बाइंग इट एट स्पॉट रेट और वी कैन से फॉरवर्ड स्वैप या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में दे आर एंटरिंग इनटू इन ऑर्डर टू बाय द डॉलर्स एट अ चीपर रेट. ऑफशोर में क्या कर रहे हैं? जैसे कि सिंगापुर, दुबई में जाकर सेल कर रहे हैं. अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इनपुट दूंगी, हाउएवर इट इज नॉट रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं हमारी न्यूज से रिलेटेड नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि सिंगापुर और दुबई में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें वहां पर उनको रोका जाता है टू बाय रुपीस डायरेक्टली. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हैविंग टू मच फ्लक्चुएशन इन द रुपी. तो वहां पर वो किस चीज में अगर उनको आईएनआर में डील करना होता है, ट्रेड करना होता है फॉर प्रॉफिट ओनली, तो कैसे किया जाता है? दे डू इट फ्रॉम एनडीएफ. एनडीएफ का क्या मतलब है? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, यानी कि उन्हें एक्चुअली रुपीज देने नहीं पड़ते, डिलीवर नहीं करने पड़ते, एंड दे डू नॉट हैव टू डिलीवर द डॉलर्स. दे जस्ट डू द प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग इफ देयर बेट इज राइट. अगर वो बेट लगाते हैं कि रुपी अभी 82 चल रहा है अगेंस्ट डॉलर, सो इट विल फॉल से टू 85. अगर उनका ये बेट सही होता है तो दे गेट हाउ मच रुपीज? 3 रुपीज का इनका प्रॉफिट हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली शेयरिंग, यानी कि 3 रुपीज सिर्फ आपस में शेयर कर रहे हैं, नॉट द एक्चुअल डिलीवरी. दे आर नॉट मेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ 85 रुपीज और 82 रुपीज. ठीक है, तो ये क्या होता है? इस बेटिंग की वजह से ये प्रॉफिट तो अर्न करते हैं, पर बेटिंग की वजह से क्या होता है? टू मच बेटिंग इन आईएनआर. इससे क्या होता है? दैट देयर इज अ चेंज इन द डिमांड. जैसे कि आपको पता है कि देयर इज अ टू मच बेटिंग ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर. तो सब क्या कहेंगे कि यार सभी एवरीबडी थिंकिंग कि आईएनआर नीचे गिरेगा, तो आई विल नॉट बाय आईएनआर, क्योंकि वो मुझे महंगे पड़ेंगे द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरह से क्या होगा? मेरी डिमांड कम हो जाएगी, राइट. और जैसे मैं डिमांड नहीं करूंगी तो रुपी और भी ज्यादा डेप्रिशिएट होगा. बिकॉज ऑफ दिस बेटिंग वी कैन से डिसीजंस चेंज हो जाते हैं ऑफ द इन्वेस्टर्स, एंड हेंस दे डील इन एनडीएफ. And because of this, there's a lot of
प्रेशर ऑन द रुपी। लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो ऑनशोर ऑफशोर मार्केट में क्या है, आर्बिट्रेज है। उन्होंने कितने का दिया, $100 मिलियन का। तो ये याद रखेंगे, हाउ मच डॉलर्स, $100 मिलियन का नेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने $1000 बाय करे हैं, लॉन्ग पोजीशन है, और आपकी शॉर्ट पोजीशन क्या है, $800, राइट। सो हाउ मच इज द एक्सपोजर, $200। तो ये आपको कम करनी पड़ेगी, $200 मिलियन, ये आपको कम करनी पड़ेगी, बिकॉज व्हाट इज द लिमिट नाउ, $100 मिलियन ओनली, ठीक है। और दिस हैज टू बी फॉलोड बाय, एंड दिस हैज टू बी डन बाय April 10, 2026, ताकि हम रोक सके टू मच प्रेशर ऑन द रुपी, रुपी के प्रेशर को रोक सके। रुपी इज अंडर प्रेशर ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड बैंक्स वर डूइंग व्हाट, दे आर बाइंग डॉलर्स एंड सेलिंग डॉलर्स इन द offshore market due to arbitrage profit. So this is the reasons that why they have said these things. तो ये हमारी थी सेकेंड न्यूज। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूज की। क्या निकाले, प्रूडेंशियल नॉर्म्स निकाले हैं फॉर द कैपिटल एडिक्वेसी। दिस इज फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दिस इज फॉर कमर्शियल बैंक्स एज वेल। ये किस किस के लिए निकाले हैं, दो बैंक्स के लिए निकाले, फॉर द कमर्शियल बैंक्स एंड फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये हमें याद रखना है। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड सम चेंजेस टू द गारंटीज दैट आर गिवन बाय द बैंक्स। अब किस तरह की गारंटी की बात कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इररिकवेबल पेमेंट्स कमिटमेंट, ठीक है। तो इररिकवेबल पेमेंट कमिटमेंट्स क्या होती हैं, दीज आर इररिकवेबल का मतलब क्या होता है, दैट दे आर नॉट गोइंग टू टेक अवे, मतलब कि वो अपने स्टेप बैक नहीं ले सकते वन दे हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है। स्टेप बैक नहीं ले सकते, और कोई रिकवरी, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में कोई रिकवरी ना हो, ठीक है। सो इट इज इररिकवेबल, दैट मींस यू कैन नॉट स्टेप बैक फ्रॉम द प्रॉमिस, फ्रॉम द कमिटमेंट दैट यू हैव मेड। तो किस तरह की कमिटमेंट है ये, मान लीजिए एक बैंक है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर ये इन्वेस्टर पे ना कर पाया फॉर द डील, देन आई विल पे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इररिकवेबल पेमेंट कमिटमेंट, जहां पर बैंक पीछे नहीं हटेगा इन पेइंग ऑफ द डील ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, राइट। और वो किसको देने होते हैं पैसे, आपको CCIL को देने होते हैं, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। दिस एक्ट लाइक अ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ये कैसे एक्ट करता है, अगर क्लाइंट ना पे कर पाया, देन आई एम गोइंग टू पे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ गारंटी। तो क्या निकाला है इन्होंने रूल, आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है दैट आईपीसी विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल गारंटी। क्या है, एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी है, और क्योंकि ये फाइनेंशियल गारंटी है, पहले बैंक्स क्या करते थे, दे हैव टू कीप 100% ऑफ द क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है दैट दे हैव टू कीप, अगर उन्होंने 100 करोड़ की गारंटी दी है, देन 100 करोड़ एक्स्ट्रा मस्ट बी केप्ट बाय देम एज अ कैपिटल बफर, एज अ कैपिटल बफर। कि अगर ये 100 करोड़ के 100 करोड़ क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं या फिर डिफॉल्ट हो जाता है ऑन दिस पेमेंट, देन आई हैव इनफ फंड्स इन माय हैंड दैट आई विल सर्वाइव इन द इकोनॉमी और आई सर्वाइव इन द मार्केट, but the capital is required on the capital market exposure risk weight, that is 125 on that exposure। तो अब आरबीआई ने क्या क्लैरिटी दी है, आरबीआई ने की है कि आप 100% एक्सपोजर ना रखिए, आप 100% एक्सपोजर ना रखिए, इंस्टेड आपको क्या करना है, आपने आईआरसी दी और उसके अगेंस्ट आपने कुछ कोलैटरल ली होगी फ्रॉम द इन्वेस्टर, ठीक है। अब उस कोलैटरल रखने के बाद मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपीस की आपने गारंटी दी, उसमें से कितना रिकवर हो सकता है थ्रू कोलैटरल से, 60 करोड़ हो सकता है रिकवर, 60 करोड़ हो सकता है रिकवर। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 40 करोड़ का एक्सपोजर। हमें एक्सपोजर कितना है, 40 करोड़ का मार्केट एक्सपोजर है, एमई कितना एक्सपोजर है हमारे पास, 40 करोड़ का। तो कह रहे यू आर गोइंग टू कीप कैपिटल ओनली फॉर दिस 40 करोड़ एंड नॉट फॉर इंटायर 100%, क्योंकि 60 करोड़ तो आपका रिकवर हो जाएगा कोलैटरल में से, बट विल नॉट बी गेट रिकवर्ड दिस 40 करोड़, है ना। तो आप इसके अगेंस्ट क्या रखेंगे, 125% ऑफ रिस्क मेंटेन करेंगे। सो 40 करोड़ का 125% कितना होगा, मान लीजिए 50 करोड़ होगा। सो 50 करोड़ हैव टू बी सेट असाइड बाय द बैंक एज अ बफर, एज अ बफर। तो देखिए यहां पर रिलैक्सेशन दे दी है टू द बैंक्स बाय द आरबीआई, दिस इज फॉर बोथ द कमर्शियल बैंक एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक।
So bank do not need to keep extra capital on the full guarantee amount, only for the actual exposure related to the capital market. This is what they are saying and this is the only change. आपको क्या याद रखना है कि अब 100% नहीं मेंटेन करेंगे, they will maintain only 125% only on the exposure, only on the exposure, only on the exposure. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दी, दिस इज ऑन द स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक्स में होगी और ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा रूल? दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026. ठीक है, यही 3 न्यूज थी. आपको क्या क्या याद रखना था एक बार दोबारा से देख लेते हैं. आपको जो की चीजें है जो आपको याद रखना है, दैट इज 125 ऑन द एक्सपोजर. जितना एक्सपोजर रह जाएगा उसका 125 रखेंगे, मेंटेन करेंगे. दिस इज एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी. एंड एज पर एनओपी आईएनआर हमें क्या याद रखना है कि हाउ मच दे हैव टू कीप. ओनली एनओपी कितना होना चाहिए, यानी कि नेट ओपन पोजीशन कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू $100 million. दिस इज व्हाट एन एजेंडा. हमें पता है टू सेफ गार्ड द रुपी कि उस पर ज्यादा प्रेशर ना आए एंड इट इज नॉट डेप्रिशिएटिंग फर्दर. और हमने क्या पढ़ा अभी तक, WMA लिमिट हमने याद रखी 2.5 लाख करोड़, राइट. एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27. WMA में हमने तीन तरह के टाइप पढ़े, स्पेशल, नॉर्मल एंड ओवरड्राफ्ट. उनके रिस्पेक्टिव रेट कितने हैं, रेपो -1%, रेपो रेट एंड रेपो +2%. ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या क्या याद रखना है मुझे फ्रॉम दीज 3 न्यूज. मैंने ऐसा क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि टेक्निकल थी आज की न्यूज थोड़ी. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. The RBI of India, that is Reserve Bank of India, sets what ways and means advances limit to help the government manage the temporary cash mismatch. What is the WMA limit fixed for the government of India for April-September 2026? That is first half of financial year 27. So what do you think is the right answer? Yes. What is the right answer? So the right answer in this case is 2.5 lakh crore. The right WMA limit for first half of financial year 27. Okay. RBI clarified the treatment of irrecoverable payment commitment under the capital adequacy norms. Which of the following correctly reflects the revised treatment? अब IRC का revised treatment क्या है? That is what we need to remember. So what is the right answer in this case? C is the right answer. That is capital is required only for the CME with 125% of the risk weight. जितना भी capital market exposure होगा उसका we will keep 125% only. बाकी सब गलत है. दैट इज दिस 50% गलत है. द कैपिटल इज रिक्वायर्ड ऑन द एंटायर आईपीसी अमाउंट, ये भी गलत है. उन्होंने अभी बताया जितना हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है हम उसके हिसाब से रखेंगे. आईपीसी इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द कैपिटल एडिक्वेसी, ये भी गलत है. कैपिटल एडिक्वेसी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर. आईपीसी इज ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ बैंक. डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ बैंक, दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है इन द नॉर्म्स. Okay, question number 3. The RBI currently introduced limits on net open position for the INR. INR is rupee here. Of the authorized dealer to manage the exchange rate volatility. What is the maximum NOP INR exposure that banks are allowed to maintain at the end of each day? ये कब maintain करना होता है? At the end of each day इन्हें maintain करना है. यानी कि ये जो 100 मिलियन की जो डिटेल्स हैं, दिस हैज टू बी मेंटेन्ड व्हाट एवरी डे मेंटेन करना है इन्हें, राइट. सो कितना है ये? सी है, दैट इज $100 million. सो रेस दिस इज द राइट आंसर. सो सुपर प्रीमियम लीग के अंडर वी हैव दिस डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक वेर इन यू कैन टारगेट वेरियस काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी examination. That is for 9,299. And this is my Telegram group. You can join this in order to get PDF and in order to get any kind of guidance from me. आपको किसी भी तरह की guidance चाहिए with regards to your examination, you can simply message me here and I will be there for you
आंसरिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और इसमें आपको सारे पीडीएफ भी शेयर कर दिए जाते हैं of this YouTube session as well. Okay, so goodbye everyone. Thanks for watching, and I hope this is a fruitful session for you. Goodbye everyone. Take care of yourselves.